दो हिट दो एकदम hit. सुपर उत्तम हाँ. टीवी सीरियल्स बुनियाद और महाभारत के बाद आपको मदर्स Mother's role आने लग गए. That is why I lost out on a lot of work because I said, how can I play mother at this age? And two people who are older than me. You were such a young girl. He's much older than you. तो आपको कुछ हेसिटेशन नहीं था नहीं, कि I he's think older people might- और he's married. ये नहीं, सब married का होता अगर if I was the home breaker. हाँ. But I've always got along better with older people. Now we are married. 5 years that before and now married so many years. More than 30 years. I have not heard of any affair that Mr. Sippy has had. लेकिन उसके पहले बहुत सुना था. I don't care. किरण, you know, हमारी right from our fairy tales से लेके जिंदगी में स्टेप मदर को एक विच जैसे बना देते हैं. But I have never seen you like that. So what is your relationship with his children? Because you're the stepmother. They all call me by name. अच्छा. They call me Kiran. मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ लेकिन कम से कम 2 एक्ट्रेसेस तो को मैं जानती हूँ. ठीक है, होगा. जिनके But that is the रवि जी past. का But that is the past. I don't want to talk relationship about रहा. it. So, you know, I would we all not like knew to. about it. लेकिन I ठीक would है. not even comment it on it. And मैं I उसमें wouldn't expect you to comment on it. I was wondering whether that would make a difference to you कि ये इतना कलरफुल आदमी रहे हैं तो you're a little apprehensive about getting. I told you I'm not that kind of person. I'm very secure within myself. And if एक आदमी मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं भी फिर उसके साथ नहीं रहना चाहती. It's as simple as that. मैं ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के बैठ जाऊँ for what? Kiran, how wonderful that we are finally meeting. I know, Bharti. This हम is लोग really एक stretched साल so से बोल long. रहे हैं कि मिलना है अभी. I'm so Correct. glad कि finally मिले. I know. You had a Really. little accident, ना? Yeah, well. what उसमें to भी say? 2 महीने चले दो गए. महीने, 2 महीने. Really? It's okay, but आपका this is life. shoulder fracture हुआ ना? Shoulder fracture हुआ. अभी भी थोड़ा actually bruises Yes, है. yes. They are there. That's why I'm wearing this full-sleeved shirt and To hide the bruises. to hide the bruises. Okay. Kiran, tell me something basic. How do you spell your name? क्योंकि मैंने KIRON देखा है, JUNEJ देखा, JON देखा. What is the Oh, correct it's been spelling? a struggle my whole life because, you know, even when they take an interview, for instance, I gave an interview for a channel and they sent me the creative, ki, this is what we're putting on the reels. And I said, but this is not right. I'm not O and I'm not U. I'm A, KIRAN, and I'm JONEJ, which is very unusual. Unusual. I don't know why my father chose to do it, but I've struggled with my whole life. And they said, but Instagram पे यही दिख रहा है, नेट पे यही दिख रहा है, तो we have picked up from there, तो आपका तो यही. They said now it's too late, so it actually went like that. Oh, so actually you are KIRAN Kiran, JONEJA. Joneja. So it's not supposed to be Juneja, it's Joneja. Okay, I got it. Okay, great. I hope the others got it. किरण, आपका नाम किरण जुनेजा है और किरण जुनेजा सिप्पी भी है. मतलब आपने अभी स्टोरीज होती हैं. आई गॉट इनटू सो मच ट्रबल. फाइनली आई हैड टू गो टू माय पासपोर्ट ऑफिस एंड गेट माय नेम चेंज टू किरण जोनेजा एलियस सिप्पी. So now I can use both because there was a time we were invited for a event out of India by the embassy, and they sent my visa like 2 days before. You know, they sent a letter and all because it's from the embassy. Right. And they spelt my name wrong. Oh. They wrote Sippy and I was Joneja on my passport. अच्छा. And because I was married and my husband's name is Sippy, they wrote Sippy. And I was like, हाँ, लेकिन can't. पासपोर्ट जुनेजा के नाम पे. Luckily, because it was the embassy, they were able to rectify it and send me another mail immediately, and I was able to go. Okay. So that's when I realized better change it in my passport so that I never get stuck in my life again. अच्छा, तो आप दोनों नाम दोनों. And I use both to my convenience. Of course. जहाँ सिप्पी वर्क करता है मैं सिप्पी यूज कर लेती हूँ. अच्छा. But when I'm doing acting or doing a role, I use Joneja because that's how everybody knows. Right. लेकिन काम अब अभी भी करती है ना? करती हूँ, but
I don't have a secretary. I'm not in the news system. I'm not in the casting list. So if something comes to me, like friends, people who know me will call me and say, "Oh, we've got a role for you." I do it. I'll be very happy to work. I love my Job. work as an actor. But I don't know, I got so busy with so many things in life that somehow कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया. वन ऑफ द थिंग्स आप बहुत बिजी हो गई है लास्ट एक साल से इज 50 years of शोले ना. That's true. Yeah. बिकॉज ये Also साल this- 2025 शोले की शोले की 50 50th years. year Yes, है yes, ना. yes, ये yes. अगस्त में Yes, इट विल बी 50 yes, years. 50 years. तो उसके लिए खास क्या कर रही हैं आप? Lot of plans, lot of things are in the thing, but we really don't want to talk about them till they are in the move. And also, honestly, not even giving interviews and all right now, because today you can't stretch things. See, if you're doing it in August, and we may not be able to do it in August, so we may do it in September, October. We don't know. Right. So if I start talking, we all start talking about it. Abhi se, Abhi se. it's too long. So we'll closer to the time we will be working, doing a lot of things together. ओके. हाउ डिड यू मीट शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी? आप पहली मीटिंग कब हुई और कैसे हुई? Okay, Bunyad. So I was जिसमें आप वीरावली. Veeravali, but I was still modeling at that time actually, more actively, and television had just started. So I got a call from Rajshri saying that we've got one episode kind of a thing, and we'd like you to come. It was a serial called Paying Guest. Right. And every episode would have a new paying guest and a story around that paying Okay, guest. okay. And I did it and enjoyed doing it because I did act from childhood. I did some plays in college, and so it was. आप तो दिल्ली की रहने वाली है ना? दिल्ली की. So तो आप मुंबई आई उसके लिए? नहीं, मैं मॉडलिंग के लिए मुंबई आई थी. अच्छा. And I was living in Mumbai then because I was one of the top models at that time already, and I had done work for already 3-4 years before television came up, and then I started working in television, maybe even a little longer, maybe 5 years. And so I did it and I enjoyed it, and then there was a serial called Bhajanab. Which was Shekhar Suman's first Yes, on मुझे याद television, है. and mine Bhajanab also. was a big hit. Yes, it was a big hit, but unfortunately we didn't go beyond 26 क्योंकि it was very Urduish. It was Shuddh Urdu because Lucknowi ka background था. Correct. And I actually got it because they were looking for a girl जिसकी ज़बान साफ हो. Okay. Okay, and me being from the north, being Delhi, मैं ख्याल बोलती थी, ख्याल नहीं बोलती थी. I could say that. So they were looking for someone who could talk like that, and that's how I got auditioned for it. Okay, for Bhajanab. For Vajanab, and that's how I got the serial. Okay. So after Vajanab, Amit Khanna, who was working with Ramesh ji on Bunyad behind the scenes, they were looking for this character. They had actually started shooting. They'd taken another actor for this. Oh. And they had shot with her. वीरावली कोई और बनने वाली Yes, थी? yes. They had अच्छा. shot 2-3 episodes with her. नाम नहीं बताएंगे आप? नहीं. What is the point? What is the point? So, एक एक्टर के साथ उन्होंने 2-3 एपिसोड शूट कर लिए थे. अच्छा. बुनियाद के लिए. बुनियाद के, and then somehow Ramesh ji was not happy with it. Okay. तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और लोग लेके आइए, मुझे कास्टिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ रीडूइंग दिस. So by the time I met him, they were in the 6th or 7th episode. Okay. और ये कैरेक्टर 3rd में शुरू हो जाता है. तो इस कैरेक्टर के सीन्स छोड़ के they were shooting. And so there was a lot of pressure on them to decide कि किसको ये रोल देना है and who to shoot it with. So I was in Delhi and I came back from Delhi. My nephew was born, came from Delhi, and at the airport I had this gentleman who was looking after my work at that stage. Say चलिए हमें फिल्म सिटी जाना है. लाइक एयरपोर्ट से फिल्म सिटी, एंड इट वाज लाइक 5:30 इन द इवनिंग, एंड आई एम सेइंग अभी इतना लेट क्यों जाना है. अच्छा, आपको मालूम नहीं था आप क्यों आए हैं? नो, उस टाइम फोन्स वर अ प्रॉब्लम. मोबाइल्स थोड़ी होते थे कि आप कॉल करके बोल देंगे. सो माय सेक्रेटरी हैड बीन टोल्ड कि वी वांट टू सी हर. सो ही केम टू द एयरपोर्ट टू रिसीव मी, एंड एट द एयरपोर्ट ही सेड कि चलिए सीधा. सो माय कार वाज वेटिंग एंड हम सीधा we went to Film City.
जहाँ And शूटिंग हो रही थी जहाँ इनकी। शूटिंग हो रही थी। Okay. एंड रास्ते में वो मुझसे कह रहा है कि रमेश सिप्पी जी शूट कर रहे हैं बिल्कुल शोले स्टाइल में, मतलब 15-20 दिन से वो कारवां चल रहा है व्हेन द यू नो द पार्टीशन हैपेंड एंड हाउ दे वर That's right. कमिंग एंड वो शूटिंग चल रही है, एंड आई एम थिंकिंग 15 दिन क्यों शूट करना पड़ता है, यू नो आई वाज सच अ नॉविस Yeah. इन द फिल्म इंडस्ट्री, Right. आई डिडंट अंडरस्टैंड कितने दिन क्यों शूटिंग करना पड़ता है, Right. एंड यू नो what really great creative people do. I had no clue. I'm not from the film industry. कहीं से भी. My father was a doctor. I'm from Delhi. I had no guidance here. Nobody to tell me ये सही है ये नहीं सही. I made many mistakes because of that. Right. Because I took the decisions and those decisions were based on my thinking. Correct. तो anyway वहाँ गए and रमेश जी वो शूटिंग उस वक्त वो अनीता कंवर के साथ एक सीन कर रहे थे, आलोक एंड अनीता कंवर, एंड आउटडोर था, ओपन था वो, एंड वहाँ एक मंजी थी, यू नो, तो मुझे कहा बैठिए, तो मुझे मंजी पे बिठा दिया, एंड आई वाज वेयरिंग दिस वेस्टर्न ड्रेस वाइट कलर्ड, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैं यू नो यहाँ जाने वाली हूँ, तो मैं नॉर्मली वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हूँ, तो मैं वो पहन के मैं बैठ गई है मंजी पे, एंड आई वाज वाचिंग द सीन, एंड वो सीन के बीच में जब एक छोटा सा ब्रेक आया, दे वर डूइंग द रीलाइटिंग फॉर व्हाटएवर, तो रमेश जी केम एंड सैट ऑन द चेयर, वो डायरेक्टर लिखा हुआ था, वो एक चेयर थी, वो आके उन्होंने रख दी एंड रमेश जी बैठ गए, एंड सो ही क्वेश्चन मी अ लिटिल एंड ही सेड, आपको मालूम था कि ये रमेश सिप्पी है? हाँ, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं थी हु इज रमेश सिप्पी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मतलब हु इज मीन्स आई न्यू इट डायरेक्टेड फिल्म्स, बट आई नेवर न्यू वो कितने बड़े डायरेक्टर हैं, मुझे नहीं आइडिया था। ये नहीं मालूम था कि शोले के डायरेक्टर हैं? हाँ पता, बट मेरे मतलब दिल्ली में क्या हम लोग या मतलब नहीं इतना नॉलेज था। शोले भी नहीं देखा था? देखी थी। ओ देखी थी बट आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड, तो इतनी बड़ी हिट है, हम लोग ये थोड़ी दिल्ली में सोचते कि इतनी बड़ी हिट है, यू नो, वी डोंट टॉक लाइक दैट, हाँ हम ऐसे थोड़ी बात करते हैं, तो पता था मेरी शोले की सरप्राइजिंगली जो मेमोरी है वो बड़ी अजीब सी मेमोरी है, तो बिफोर आई सॉ द, मेरे पेरेंट्स ना हमें ना बड़ा क्यूरेट करके फिल्में दिखाते थे, राइट, अगर थिएटर में जाना है तो पहले पूछा जाता था कि उसमें कोई ऐसे सीन्स तो नहीं है, यू नो, बच्चों के देखने लायक है, एंड देन वी वुड सी फ्यू फिल्म्स, यू नो, अपार्ट, साल में 4-5 फिल्म थिएटर में देखते थे, ऐसे थोड़ी कि हर वीक चले जाते थे, सो आई डिड सी शोले, बट मेमोरी ऐसी नहीं, बट शोले से पहले मेरी इरिटेशन एक दिन संडे को छुट्टी, एंड आई वांटेड टू स्लीप इन द आफ्टरनून, लस्सी वस्सी पी के, दिल्ली में, you know, अच्छे पराठे लस्सी, और मैंने कहा अब सो जाते हैं, और वो किसी ने रिकॉर्ड चलाया, कितने आदमी थे, फिर कोई और लाइन, और वो बार बार, मतलब उसने पूरी दोपहर मुझे सोने नहीं दिया, बिकॉज़ दे केप्ट प्लेइंग, सामने स्पीकर पे था, तो कहीं आसपास कुछ फंक्शन हो रहा, मुझे नहीं पता क्या था, बट आई कुड हियर दिस रिकॉर्ड प्लेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दिस इज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू शोले बिफोर आई सॉ द फिल्म। Oh, okay. An irritation का, it was an irritating like, मुझे reaction, सोना yeah. है यार, अभी सोने दो, तुम बार बार क्यों प्ले कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कितना क्रेज था, you know, because we didn't come from that background. That's right. So तो जब आप मिली रमेश जी को और वो आपसे कुछ सवाल करने लगे, तो क्या हुआ, कैसी बातें हुई? हाँ, तो उन्होंने कुछ सवाल किए, फिर मुझे बोला कि डेट्स अवेलेबल हैं, तो मैंने कहा मैं तो मॉडलिंग करती हूँ, तो डेट्स अवेलेबल हैं, वी आर नॉट बुक्ड फॉर, यू नो, तो हमारे तो टाइम टू टाइम आता है, यस आई कैन डू इट। द नेक्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी, वुड यू, हाउ ओल्ड आर यू, तो आई वाज लाइक व्हाई डज ही वांट टू नो, तो मैंने कहा कि एज ओल्ड एज आई लुक, you know, I did not answer that question. Okay. So then he said, no, I'm asking क्योंकि would you be comfortable playing from young to old? और मैं तो so excited in my mind कि कितना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा मुझे, यंग टू ओल्ड, वाओ ब्यूटीफुल, ये नहीं सोचा कि इंडिया में कि फिल्म लाइन में परसेप्शंस होती हैं, आप एक बार ओल्ड प्ले कर लो तो आपके पास ओल्ड वाले रोल आने शुरू हो जाते हैं, और मेरी बैड लक कि बुनियाद में और महाभारत दोनों में मैंने यंग टू ओल्ड प्ले किया, लेकिन लास्ट मेमोरी फिर ओल्ड की रह जाती है, बिकॉज व्हाट यू सी एट द एंड, यू सी द पर्सन एज ओल्ड। सो इन दो के बाद तो मुझे बड़े बड़े हीरोज की मदर के रोल आते थे, मतलब जो मुझसे एज में बड़े थे, दो हिट, एकदम सुपर उत्तम टीवी सीरियल्स बुनियाद और महाभारत के बाद
आपको मदर्स रोल आने लग गए. That is why I lost out on a lot of work because I said, how can I play mother at this age? And two people who are older than me. Correct. मतलब वो मुझसे कम से कम 10 साल, 12 साल, 15 साल उम्र में ज़्यादा है और मैं उनकी मदर प्ले करूँगी. बट उन्होंने मुझे देखा एज अ मदर. सो मेरी जहाँ से बुनियाद बनी वहाँ बुनियाद ख़त्म भी हो गई. मतलब as far as cinema is concerned. बट आपको मतलब shall we go back to जब आप रमेश जी को मिली? Okay. What was it like and did the हाँ, sparks तो he said मतलब कि, उसी वक्त sparks शुरू हो गए आप दोनों के नहीं, बीच? बिल्कुल नहीं. ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा नहीं होता है. नहीं, love at first sight सुना. नहीं, like I told you, I didn't even know how big he was. ऐसा नहीं था कि कोई और था कि my God मैं मिल रही हूँ. नहीं था, उस वक्त नहीं था. Later जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया और जब मैंने लोगों को का बिहेवियर देखा उनकी तरफ और किस तरह लोग आके उनके पाँव छूते थे और कैसे डरते थे उनसे, you know, तब मुझे समझ आया how big this man was in the industry. Right. तब मुझे ये पता चला. तो उन्होंने कहा ठीक है. आई सेड यस ऑफ कोर्स मैं करूँगी. तो ही सेड ठीक है. एंड दिस वाज प्रोबेबली अ वेडनेसडे और अ थर्सडे. तो उन्होंने कहा कि फ्राइडे को माय रत्ती एक ड्रेस डिज़ाइनर की असिस्टेंट होती थी. उन्होंने कहा कि वो आएगी, शी विल टेक योर मेजरमेंट्स. सैटरडे तक आप मेजरमेंट आप ट्रायल ले दीजिए और मंडे मॉर्निंग आई वांट यू ऑन द सेट्स. So it literally happened between like 3 days later I was actually shooting for Bunyad. बुनियाद. Yeah, that's how it happened. अच्छा. And फिर आपको मालूम पड़ा, लोगों ने बताया और आपको मालूम पड़ गया कि now I've got a break with रमेश सिप्पी. हाँ, बताया नहीं, उससे ज़्यादा मैंने महसूस किया बिकॉज जब काम करते हैं तो यू सी बाकी एक्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. एंड आई कुड सी द इमेंस रिस्पेक्ट जो लोगों के माइंड में थी एंड द वे दे वुड लिसन टू रमेश जी इतनी इंटेंसली. सो आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन. तो मैंने ये सब नोटिस किया कि लोग इतनी, मैंने कुछ काम किया हुआ था पहले, तो मैंने टेलीविज़न भी किया था, पर ऐसे मैंने नहीं देखा था कोई डायरेक्टर को इतना यू नो रिस्पेक्ट देते हैं और इस तरह. तो आई न्यू दैट ही वाज समबडी हु वाज नॉट जस्ट अ बिग डायरेक्टर, लेकिन उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी इंडस्ट्री में, इज्जत बहुत थी. He was on a pedestal. Yes, he was. Always was. अभी भी. हाँ, अभी भी. हाँ. Because I think he's a very graceful man. उन्होंने जिंदगी भर कभी भी he's never misbehaved, never done anything out of line. किसी के बारे में कभी बुरा नहीं बोलते हैं. तो you know there is a certain personality that attracts that respect. Correct. So बुनियाद के दौर पे आप दोनों you got attracted to each other? I think work में हो जाता है कभी कभी. बिकॉज हम लोग सुनते थे कि ये दोनों अभी. अच्छा, बट द फनी पार्ट इज कि हमसे पहले जर्नलिस्ट को पता था. मतलब मुझे नहीं पता था, बट आई रेड अ लिटिल आर्टिकल कहीं पर, इतना सा था, बड़ा नहीं था, बट सेइंग समथिंग हैपनिंग, ब्रूइंग बिटवीन. नथिंग वाज ब्रूइंग एट दैट टाइम, बिलीव मी, नथिंग वाज ब्रूइंग. बट प्रेस को पता नहीं कहाँ से, हमसे पहले उनको पता होता है हम क्या करने वाले हैं लाइफ में. सो आई रेड दिस आर्टिकल एंड आई जस्ट लाफ्ड इट ऑफ एंड सेड हाउ सिली, यू नो. बट यस, हैपेंड ड्यूरिंग वर्क. एंड बाय देन ही वाज ऑलरेडी सिंगल ना, उनकी ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी थी ना? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ था, बट देयर वाज अ अंडरस्टैंडिंग एंड देयर वाज नॉट अ सेपरेशन क्योंकि रोहन वाज वेरी यंग एंड उसका फाइनल ईयर था एंड दे डिड नॉट वांट टू डिसरप्ट हिज दिस थिंग. बट लाइफ ऐसे नहीं होते, बट दे डिड फाइनली सेपरेट इवन बिफोर ही गिव हिज एग्जाम्स. बट दैट टाइम देयर वाज एन एफर्ट बीइंग मेड कि अभी नहीं करें कुछ भी, जो भी है, लेट द you know him give his exams and we will do whatever we need to. Right. So that is what it was. Okay. What was it like working in a big mega serial like Bunyad? I think it was like a school for me. अच्छा. मैंने बहुत सीखा बुनियाद के दौरान. मैंने एंगल सीखे. आई मीन आई वाज नॉट एन एक्टर, मैंने कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं थी. जो भी मैंने सीखा था वो मैंने सेट्स पे ही सीखा था. मैंने कोई क्लासेस भी नहीं की थी. आई थिंक आशा चंद्रा की मैंने 3 क्लासेस की थी एंड आई गिव अप. नहीं किया मैंने उसके बाद. सो मेरे लिए इट वाज लाइक अ स्कूल. मैंने बहुत सीखा बुनियाद के दौरान. मैंने एंगल सीखे, मैंने कुछ सीन या कुछ ऐसे कुछ बताइए. तो एक सीन ऐसा था
जिसमें दिस इज़ मच लेटर दो, बट ये सीन मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी इन दैट घेरवा ड्रेस एंड ऑल, एंड आई एम लुकिंग थ्रू बार्स ऑफ अ विंडो और आई क्राई, और वो टीयर गिरना है, एक कैमरा ऐसे जा रहा है मतलब ट्रॉली पे, और जब वो मुझे क्रॉस करता है वो बार में, तब मेरा टीयर गिरना चाहिए. ओके, विट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप ग्लिसरीन डालते हैं आंखों में, एंड टू मैनिपुलेट कि कब आंसू गिरे बहुत मुश्किल है. एंड उसके ऊपर से मेरा परफेक्ट आईज वो उसके बीच में होनी चाहिए. सो इट वाज बहुत सारी कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व थी एक शॉट के लिए. आई थिंक उस शॉट के कुछ 15-16 शॉट रीटेक्स हुए होंगे, और बाय द एंड ऑफ इट माय नोज वाज रेड. आई वाज मतलब मैंने 16 बार ग्लिसरीन डाला आंखों में, एंड कभी एंगल सही नहीं होता था, तो कभी टीयर नहीं सही टाइम पे गिरता था, तो करते करते कुछ 15-16 टेक्स हमने उस शॉट के दिए. अच्छा. बट आई लर्नड पेशेंस. आई लर्नड कि सेट पे कितनी भी मेहनत हो, आपको इरिटेट नहीं होना चाहिए. आपको यू शुड टेक इट सीरियसली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो स्क्रीन पे दिखता है वो ही सच है. तो किसी को पता नहीं है कि आपने 16 टेक्स दिए हैं उस शॉट के लिए. खैर इस केस में तो टेक्निकल काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बट कई बार ऐसा भी होता है कि यू डोंट गिव योर बेस्ट. तो एंड इफ द डायरेक्टर इज इंसिस्टेंट ऑन, ही रमेश जी परफेक्शनिस्ट है, उनको जो चाहिए वो ही चाहिए. वो 10 बार करें, 5 बार करें, 25 बार करें, ही डजंट केयर, बट ही नीड्स इट. सो आई ऑल्सो लर्नड दिस कि यू हैव टू सेटिस्फाई द डायरेक्टर. उसकी जो विजन है, वो जो देख रहा है, आपको उतने तक जाना है. यू हैव टू मैच हिज एक्सपेक्टेशंस. यू कैनॉट से कि यू नो. सो आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. किरण, बुनियाद और महाभारत ऑलमोस्ट साथ साथ चल रही थी ना, तो कैसे मैनेज किया आपने? महाभारत की भी यही अजीब सी कहानी है. तो चोपड़ा जी न्यू मी, आई मेट हिम अ फ्यू टाइम्स. तो उनके ऑफिस से फ़ोन आया, चोपड़ा जी ने मुझसे पर्सनली बात की. अच्छा. बोले कि बेटा तेरे लिए बहुत अच्छा रोल है मेरे पास, गंधारी का रोल मुझे ऑफर किया था. अच्छा. ओके. नॉट गंगा. नो, गंधारी टू बिगिन विद. तो ये स्टोरी है फिर से. तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा पर चोपड़ा जी मैं तो बुनियाद शूट कर रही हूँ, तो यहाँ तो आई एम शूटिंग एवरी डे, तो मैं दोनों कैसे करूँगी, तो बहुत अच्छा बड़ा रोल है, आई नीड टू बी देयर. तो बोले हाँ ये प्रॉब्लम तो. अच्छा चलो मैं सोचता हूँ. दे कॉल्ड मी आफ्टर 15 days एंड ही सेड आई हैव गॉट द परफेक्ट रोल फॉर यू. गंगा का रोल है, आप 3-4 एपिसोड में ही हो शुरू में, तो आप शूट कर पाओगे, उसके बाद आप तो चले जाते हो. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. ऐसा ठीक है, ये तो मैं कर लूँगी. अब हुआ ये कि यहाँ पे बुनियाद में मेरा रोल बहुत पॉपुलर हो गया. और वहाँ महाभारत में दे लव्ड गंगा. तो जब गंगा को उन्होंने पसंद किया, तो दोनों जगह पे ये हुआ कि आई मे नॉट हैव गॉन इनटू द ओल्ड. अगर इतना पॉपुलर नहीं होता रोल, तो शायद वहीं खत्म कर देते. और दोनों में मैं गई थी. दोनों में इफ यू सी आई वेंट अवे, और फिर मैं वापस आई एज ओल्ड. तो मुझे चोपड़ा जी ने कहा कि तो वो ख़त्म हो गया. 4 एपिसोड जो भी थे कर दिए, ख़त्म हो गया सीन. अब ये रोल पॉपुलर हो गया. तो अब फ़ोन आया मुझे BR से कि वो वी वांट टू ब्रिंग यू बैक. तो आई सेड हाउ विल यू. मैं तो चली गई हूँ. सर नहीं, आप अपने बेटे से बात करती हैं, यू कम फ्रॉम हेवन एवरी टाइम एंड यू टॉक टू हिम. हाँ. तो मैंने कहा पर आई डोंट वांट टू बी ओल्ड. मैंने कहा पर मुझे नहीं ओल्ड प्ले करना है. मतलब मैं और यहाँ भी करूँगी फिर वहाँ भी करूँगी, मुझे नहीं करना. आई लिटरली सेड मुझे नहीं करना. तो बोले पर आप क्यों ओल्ड होंगी, आप तो गंगा है, आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगी. ओह, गंगा विल रिमेन गंगा. गंगा विल रिमेन गंगा. ओके. तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं कर लेती हूँ. First day when I went, I saw Bhishma Pitama with Dadi and everything. I was like, oh God, okay, I am looking the same, but my son is now. मतलब क्या उम्र हो गई सन की. तो but अब एक बार कमिटमेंट दिया है, करना है तो फिर करना है. तो I did it and I did it to my best. Right. और दोनों ही they were super hit serials. दोनों. Actually वो आपकी सब serials, because you did वाजना, वो भी यादगार रही.
एंड उसके बाद भी यू डिड काफी किया है आपने. बहुत किया, मैंने काम बहुत किया. मोस्ट ऑफ योर थिंग्स Yeah, वेरी पॉपुलर. पॉपुलर, या आई थिंक ये जो है जिंदगी वो भी किया ना. वो तो हाँ, दैट वाज बिफोर इन फैक्ट. बिफोर तो इवन दैट वाज अ हिट. That was a hit. पेइंग गेस्ट वाज आल्सो. बट ये जो है जिंदगी, तो मेरी एंट्री बहुत लेट थी, तो ऑलरेडी सीरियल चल रहा था, एंड देन दे वर एडिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि वो चलता गया. एंड आई न्यू ओबी Oberoi, who was doing they were producing it also, and he was not directing. Raman Kumar was directing Right. it. He was producing it, but I had done ads with him. अच्छा, okay. So that is how he knew me. तो जब ये कैरेक्टर आया महाजनाम में, तो he said, I mean, ये जो है जिंदगी में, तो he said Kiran will be right for it. And that's how I got That's how you got it. That's how I got it. लेकिन आप देखेंगे तो वाजनाव, ये जो है जिंदगी, बुनियाद, महाभारत, they are all super hit serials, isn't it? Super hit serials. Super hits. And then what did you do? You went and got married. Then बस वही हो गया ना. मैरिज से पहले भी नहीं, I told you कि बुनियाद के बाद मुझे काम आया. ऐसा नहीं कि काम नहीं आया, but जिस तरह का काम आया, I was not happy with it. Obviously मुझे, I didn't want to play mother at such a young age. So and then फिर रमेश जी की, मतलब even before marriage सबको पता तो था कि ये तो कुछ शादी वादी होने वाली है, तो पहले ही लोग थोड़ा सा पीछे हटने लगे. Coming back to Ramesh ji, you were such a young girl. He's much older than you. तो आपको कुछ hesitation नहीं था कि he's older or he's married? ये सब married का होता अगर if I was the home breaker. But I already knew what the situation was, so it's not like I broke a home. So I was okay with that. That was not my worry. But I've always got along better with older people somehow. Okay. Men or women, I don't know, maybe I was too mature for my age. क्या था? Young मेरे age के boys मुझे ना, मतलब mentally tuning ही नहीं होती थी. Okay. So yes, he was a little much older, but I didn't face that. नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा. Okay. And what is it about Ramesh ji that really attracted you ultimately? His personality. He's a very lovable, very likable person. Any woman would be attracted so to him. I saw a man who was so big, so huge, लेकिन एक मिनट के लिए भी, कभी भी, किसी के साथ भी, वो स्पॉट बॉय भी हो, कोई भी हो, मैंने रमेश जी को ऊंची आवाज़ में या मिसबिहेव करते या उसको रिस्पेक्ट देते हुए ना देखा. एंड दिस वाज कमेंडेबल, बिकॉज यू नो लोग सक्सेस के साथ बदल जाते हैं. बहुत बदल जाते हैं, एंड दे हैव सच, एक फिल्म हिट हो जाती है तो उनकी ऐसी एयर्स होती हैं जैसे, तो यू नो वी हैव अराइव्ड, एंड हियर वाज अ मैन हु हैड गिवन हिट आफ्टर हिट, यू नो, बट वाज सो हम्बल. और इतने पोलाइट, इतने प्रॉपर, यू नो, लेडीज आए तो वो खड़े हो जाते थे, मतलब बिल्कुल तमीज़दार. आई लाइक्ड हिम एज अ ह्यूमन बीइंग. You got attracted. I got attracted to the personality, to the person he was. Right. So did you say the first thing, or did he approach you, or was it mutual? I don't know, it just happened. Honestly speaking, मेरी इतनी क्लियर मेमोरी भी नहीं है कि कैसे हुआ, कब हुआ, because you can't time it. हो गया. Yeah. But tell me how your parents are not from this industry. आपका कोई ताल्लुकात ही नहीं है with the film industry. तो उन्होंने कैसे लिया? क्योंकि उन दिनों में सब लिखते थे आपके बारे में. But they knew that marriage was on the card. They knew that. For a while उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की इस बारे में, because they didn't know कि कैसे बात करें इस बारे में. But finally he went and he met them and proposed marriage to me, and with my parents' consent. कि I want to, फिर date decide हुई. I think it was difficult for them, पर उन्होंने कभी मुझे ऐसे बोला नहीं. अच्छा. Yeah, they were good parents. And tell me, what's it like to be married to a man older than you? कुछ नहीं. There's nothing that you. There's nothing you'd like to tell any girl. No. See, like I said, मैं तो हमेशा से ही, तो it depends on what your personality is. If you are not mature enough, then marrying a mature person could be a problem. Intelligence level and thinking level match नहीं करेगी.
But luckily for me, he and I are on the same page for everything. And I come from a family where they had a lot of values, and I find Ramesh ji has a lot of values. So मेरे लिए वो ट्रांजिशन बिल्कुल नहीं रहा, मुझे मतलब कंफर्ट जोन था मेरे लिए. हम लोग भी उन्हें जानते हैं बिफोर शोले, हम लोग जानते हैं. And he has remained consistent gentleman, absolutely. Yeah. आपकी जिंदगी कुछ बदली after you became Mrs. Ramesh Sippy? Of course, बहुत बदली, बिल्कुल बदली. You know, for me, marriage was, I'm a little different. I'm an Aquarian, तो एक तो Aquarians वैसे ही बहुत ahead होते हैं. तो for me, marriage is just a paper. Commitment important है. तो जब मैं मतलब 3-4 साल we were dating and it's a long period. तो मेरी घर पे भी आए हो आप. तो लोग मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कि व्हाट आर यू डूइंग, जल्दी से शादी करो, ये क्या कर रही हो तुम, ही विल लीव यू. मतलब देयर आर सच अट्रैक्टिव लवली अदर गर्ल्स आल्सो, मेन टायर, यू नो, टायर हो गए, अभी 3 साल हो गए, 4 साल हो, क्या कर रही हो तुम. एंड आई वाज लाइक, अरे भाई अगर छोड़ना है तो बेटर अभी छोड़ देना, शादी के बाद क्यों वो सब चाहिए तमाशा, नहीं चाहिए. इट्स ओके, आई एम वेरी सिक्योर. अगर होना होगा लाइफ में, ये लिखा है तो यही होगा, और अगर नहीं होना है तो फिर मुझे चाहिए ही नहीं. इट हैज़ टू बी ऑन म्यूचुअल टर्म्स. ही शुड वांट टू बी विद मी एंड आई वांट टू बी विद हिम, तभी वो रिश्ता चलता है. दोनों में से अगर एक पार्टी भी, आई मीन इफ ही इज इंटरेस्टेड इन अदर विमेन, तो शादी हो या ना हो, करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंड टचवुड, नाउ वी आर मैरिड, 5 years that before and now married so many years. More than 30 years. I have not heard of any affair that Mr. Sippy has had. लेकिन उसके पहले बहुत सुना था. I don't care, but मैंने see this is I have to tell you, बिल्कुल सुना नहीं, मालूम था मुझे. Okay, होगा, but I know वो this बहुत much. कलरफुल आदमी थे before. But I know this much कि after meeting me, I don't know of any affair till today, या कुछ भी ऐसा कुछ भी मैंने नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन कम से कम 2 एक्ट्रेसेस तो को मैं जानती हूँ. ठीक है, होगा, जिनके but that साथ is the रमेश जी past. का But that is the past. I don't want to talk about it. I would we not all like knew to. about it. I would not even comment it on it. And मैं I उसमें wouldn't expect you to comment on it. I was wondering whether that would make a difference to you कि ये इतना कलरफुल आदमी रहे हैं तो you're a little apprehensive about getting. I told you I'm not that kind of person. I'm very secure within myself. And if एक आदमी मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं भी फिर उसके साथ नहीं रहना चाहती. It's as simple as that. मैं ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के बैठ जाऊँ, for what? Correct. I don't believe in that. And no regrets. No regrets at all. Not at all. That's right. Yeah, and I've seen the two of you. Oh, it's almost been grow wonderful. together. Yeah. I don't know ज़िंदगी कैसे निकल गई, मुझे तो पता भी नहीं चला. To be honest. किरण, you know, हमारी right from our fairy tales से लेके जिंदगी में स्टेप मदर को एक विच जैसे बना देते हैं. बट आई हैव नेवर सीन यू लाइक दैट. तो व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हिज चिल्ड्रन, बिकॉज़ यू आर द स्टेप मदर? They all call me by name. अच्छा. They call me Kiran. Okay. Nobody calls me anything else. तो रोहन and Sheena आपको everybody, किरण बुला. all 3 children. Sona also. It's a wonderful relationship. I go to office, Rohan comes to office all the time. We work together. And when Sheena's here, I meet her. We went and stayed with Sona. I think अगर आप अपनी बाउंड्रीज जानते हो तो कभी रिलेशनशिप सावर नहीं होते. You need to know कि ये मेरा, this is, ये मैं बोल सकती हूँ, ये मैं नहीं बोल सकती, ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे यहाँ नहीं घुसना है. Correct. अगर आप अपनी बाउंड्रीज जानते हैं तो फिर कभी भी रिश्ता ख़राब नहीं होता. आई विल नॉट गो इन टू दैट एरिया जहाँ की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है मेरी कमेंट्स की. आई विल ओनली कमेंट ऑन समथिंग जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ कोई वैल्यू है इस बात की. आई डोंट नो, इट्स बिन ग्रेट. आई हैव नेवर हैड अ फाइट विद एनी ऑफ देम, नेवर हैड एनी आर्ग्यूमेंट. कभी कुछ ऐसा नहीं है. इवेंट्स होते हैं, अगर ओकेजन्स होते हैं तो वी स्पेंड इट टुगेदर. Ex-wife, I've never heard you say anything against his wife. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. That's what I have noticed. And so I just thought that, you know, we're breaking the myth of the stepmother, really. But age-wise also, na, I'm somewhere in between. So it's not like the kids are really kids for me. Yeah. Matlab, you know. That's right.
So that also makes a difference. And it's not like you insisted कि you've taken their mother's place and said now I'm your new mother. ऐसा कुछ नहीं है. I don't want to be their mother. They have a mother. They have their mother. That's true. That's true. Did your career change after marrying Ramesh ji and after being पहले भी involved नहीं with him? था, like I told you, तो मतलब मैरिज से पहले भी 2-3 साल सबको पता था कि शादी होने वाली है, तो इट्स नॉट लाइक शादी से पहले मेरा करियर बहुत टेक ऑफ कर गया था. एंड एक्चुअली I also took a back seat. I mean, my priorities were right, that the marriage is important to me, everything else, or my husband is important to me. Everything else takes second place. तो मैंने करियर को फर्स्ट प्लेस नहीं दिया लाइफ में. It's always been the second place in my life. तो जो मुझे आया, सामने से आया, अच्छा आया, मुझे लगा मैं ये कर सकती हूँ without disrupting my पर्सनल लाइफ. तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम छोड़े भी उस टाइम जो विच इन्वॉल्व लाइक सीरियल्स में. फिर तो लॉन्ग शूटिंग्स होती हैं, 1 साल 2 साल की कमिटमेंट होती है. एंड देयर वर सीरियल्स विच वर बीइंग शॉट आउट ऑफ बॉम्बे, विच मेंट कि हर महीने मैं 15 दिन 10 दिन 12 दिन मैं बाहर रहूँ हर महीने. इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी. तो मैंने आई टर्न डाउन वर्क वेरी ऑफन एट दैट टाइम कि ये सोच के कि नहीं इतना लंबा मैं नहीं कर सकती. फिल्म्स आई एम ओके विद बिकॉज वो वन टाइम कमिटमेंट होता है. फॉर इंस्टेंस टुडे OTT वुड बी द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड बीच बीच में आप कर लेते हो और फिर वो ख़त्म हो जाता है. फिर नेक्स्ट सीज़न जब आएगा तब आप शूट करोगे, तो आपको लंबे गैप्स मिल जाते हैं बीच बीच में. जबकि सीरियल्स में टेलीविज़न इसीलिए मैं कई साल से नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी डेली सोप्स का ज़माना है. तो वे नेवर दे कॉल मी. मुझे अभी भी कॉल्स आते हैं, कोई भी खाली नहीं जाता कि मुझे टेलीविज़न के लिए कॉल नहीं आते. बट इट इज़ ऑलवेज कि मैम 20 दिन चाहिए. आई कांट गिव 20 days बिकॉज इनकी शूटिंग भी लंबी होती है. फॉर अ TV सीरीज़ यू शूट सुबह 9 से रात के 10 बजे तक, फिर आप घर पहुंचेंगे 11 साढ़े 11, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वापस आपको सेट घर छोड़ना है 8 बजे. सो देन व्हाट इज़ योर लाइफ? So you like your life as Mrs. Ramesh I Sippy like and it. you I like want to spend time you want with quality him. time with him. मुझे quality time चाहिए. I will love to work and I love my work and I'm good at my work. But priority family को गई है, मतलब my personal life. That's right, yeah. And how is Ramesh ji about your work? I mean, was he always okay कि He's cool. करते रहो कोई? I met him. I mean, I met him on work. But so men change, after marriage. No, I think it was a thing we sorted out before marriage only. That I will continue working. I told him कि I'm not, मेरी personality वो नहीं है कि मैं घर पे बैठ के कुछ भी ना करूँ. I will not be happy. And my thing is कि अगर आप जिंदगी में खुश नहीं हैं तो आप दूसरे को खुशी नहीं दे सकते. So I need to be me. अगर मैं खुश हूँ I will expand it on to you, pass it on to you. अगर मैं ही दुखी हूँ तो मैं आपको कैसे सुख दूंगी? So I'm very clear about that. But वही है कि काम मैंने कम किया बहुत, but वो मेरी चॉइस थी. Yeah. It was not his choice. I mean, I never ever overstepped on anything in my life. कि मेरी बाउंड्रीज ये हैं, वो मैंने बाउंड्रीज सेट की अपने लिए. किरण, are you also very aware कि मैं मिसेस रमेश सिप्पी हूँ और मैं किरण हूँ, तो मैं ऐसे रोल्स नहीं करूँगी बोल के कुछ वो ऐसे रोल मुझे आएंगे ही नहीं. अच्छा, लोग आएंगे नहीं आपके पास बिकॉज दे नो हु यू आर. वैसे नो, नॉट बिकॉज ऑफ हु आई एम. मुझे मेरी जो इमेज स्क्रीन पे है वो वैसी नहीं है. ओके. पर्सनल लाइफ में मैं कपड़े ऐसे पहनती हूँ, सब करती हूँ, बट स्क्रीन पे आई हैव ऑलवेज प्लेड बहुत ही सोबर रोल्स मैंने किए हैं. तो मेरे वो रोल्स मतलब वो मुझे आएंगे ही नहीं बिकॉज मेरी जो वही मैंने कहा ना कि परसेप्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इंडस्ट्री में. तो अगर आप नेगेटिव रोल प्ले करते हो तो आपके पास नेगेटिव ही आएंगे, आप पॉजिटिव प्ले करते हो तो आपके पास पॉजिटिव ही आएंगे. तो मेरे पास जो भी रोल्स आते हैं वो मुझे ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि ये मैं करूँ कि ना करूँ. ऐसा कुछ हुआ नहीं लाइफ में. Okay. आपने जो फिल्में की है, most of them have been like a Punjaban or Mrs. somebody or something, or mother to somebody, etc. Whether it is Krish or whether it is Khosla Ka Ghosla, whatever, इसमें से आपको कौन से यादगार रहे हैं? Any role that you would really say I'm so happy I did it? But I'm happy all the roles I did. I'm sure. नहीं, but जो मैंने चूज किया है वो मैंने तभी चूज किया जो मुझे अच्छा लगे. And I'll say one thing, भारती, मैंने कभी ना
रोल की लेंथ नहीं देखी है मैंने। अरे खाली 5 सीन्स हैं, ओके, आई जस्ट फील दैट द पल्स ऑफ द रोल। फॉर इंस्टेंस जब मैंने खोसला का घोंसला की, तो खोसला के घोंसला डायरेक्टर जब मेरे पास आए, इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म। जयदीप की फर्स्ट फिल्म थी एज राइटर। एज अ राइटर, Okay. दिवाकर बैनर्जी की फर्स्ट as a फिल्म थी, director. जयदीप एज राइटर फर्स्ट फिल्म थी। एंड ही कॉल्ड मी एंड ही केम होम टू नरेट द रोल टू मी। और रोल इतना बड़ा, उसने कहा मुझे, मैम यू विल बी रिमेम्बर्ड, रोल छोटा है बट इट इज। आई हर्ड दोज फ्यू सीन्स एंड आई वाज लाइक यस आई एम डूइंग इट। सो आई हैव नेवर सीन द लेंथ, बट मे बी आई हैव दैट इंस्टिंक्ट कि आई कैन फील कि ये रोल यू नो इसमें कुछ है। तो And you're not bored of playing the Punjaban? क्योंकि you are a natural choice. You and Kiran Kher. Punjab. We are from Punjab. अब क्या करें? I'm not from Punjab. I'm from Delhi, but I am Punjabi. North की हूँ, लोगों को पता है। And face वो गोरा, the way they want, you know, बिल्कुल पंजाबी face है वो। Not really, क्योंकि it may be Punjabi, but every role was different. Okay. The character may be Punjabi, but जो role था वो अलग था, हटके था. So I enjoyed it. Okay. Where are you at right now? मुझे लगता है कि आप डायरेक्टर बनना चाहती हैं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है। मुझे मालूम है आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। बना रही हूँ, अभी खत्म नहीं हुई। मैं दिस इज माय थर्ड फोर्थ डॉक्यूमेंट्री। आई डिड 2 documentaries फॉर फिल्म्स डिवीजन। मैं पहले कर चुकी हूँ, तो आई एम एक्सपीरियंस्ड इन इट। मैं बात नहीं करती इन चीज़ों के बारे में। आई नेवर टॉम, मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। आई जस्ट क्वाइटली गो अबाउट माई वर्क। वॉट इज़ इम्पोर्टेंट कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, आई शुड बी हैप्पी विद इट, रिलीज़ होना चाहिए, दिखना चाहिए। दैट इज़ वॉट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। तो मैंने कभी बात नहीं की इन बातों के बारे में। येस आई वुड लव टू डायरेक्ट, कुछ करूँगी ज़रूर, बट आई वुड लव टू एक्ट ऑल्सो। अच्छा, क्योंकि आप एक डॉक्यूमेंट्री रमेश जी के ऊपर बना रही हैं, क्योंकि यू हैव इंटरव्यूड हाफ द इंडस्ट्री फॉर इट। यस, नहीं इतना भी नहीं है, बट यस काफी लोगों को आपने किया है। या तो वो तो आई सपोज शोले के 50th ईयर के साथ समवेयर उस सेलिब्रेशन में आ जाएगा। सो मुझे मालूम है कि वो आप कर रही हैं। उसके अलावा भी आप कुछ सोच रही हैं? आई एम वेरी एक्टिव एक्चुअली। ऑफिस में मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। आई सिट ऑन द स्टोरी सेशंस, जो भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इस वक्त। आई कंट्रीब्यूट एज अ राइटर लिटरली। एंड आप रोहन के साथ काम करती हैं? नहीं, रोहन के साथ एक प्रोजेक्ट पे मैं थोड़ी देर बैठी थी, बट बाय एंड लार्ज नो। लाइक आई सेड, आई यू नो योर वे टू कीप द बाउंड्रीज। नहीं, इट्स नॉट लाइक कुछ हो जाएगा अगर मैं साथ में काम करूंगी, बिल्कुल नहीं होगा। एंड वी डू वर्क टुगेदर बट इन डिफरेंट कैपेसिटीज। लाइक मैं एडमिन भी संभालती हूँ, तो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज वेयर वी सिट टुगेदर एंड डिस्कस थिंग्स, और मैं हैंडल भी करती हूँ वो चीज़ें। बट क्रिएटिवली सेशंस पे मैं बैठी हूँ। ओकेजनली मैं जाके बैठ जाती हूँ और मैं सुनती भी हूँ, मैं कमेंट भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आई एम टोटली आउट ऑफ इट, बट आई एम नॉट एक्टिवली, मतलब प्रोजेक्ट कोई ऐसा मैं उनके साथ नहीं कर रही। करेक्ट, या। वुड यू लाइक टू असिस्ट रमेश जी? क्या वो पिक्चर बनाने वाले हैं? ही इज वर्किंग ऑन 1 or 2 ideas. He wants to do 1 film. अच्छा, एक और। Actually, he's quite excited about OTT also. You know, Mr. Sippy. जब टेलीविजन आया तो उन्होंने सीरियल किया, तो that is a medium he's been exploring. There is a serial he has worked on. Okay. And it's quite ready, 70% ready है. On मतलब paper. the writing part of it. When it's ready, I think he might shoot that also. But film, yes, definitely. It's more containable, it's easier. एक फिल्म और एक OTT पे दो चीज़ पे काम करें। Actually, film is still not happy with the scripts that he's been getting, honestly speaking. तो he is the kind of man, उनको अच्छा लगेगा तो ही वो करेंगे, नहीं तो वो करेंगे नहीं। Why do it? हाँ, तो why do it? तो जिस दिन उनको लग गया ना, this is what I want to make, तो फिर वो मना लेंगे। अच्छा, okay. And I just wanted to ask you, after all these years of being with Ramesh Sippy, what are the films of his that you really like? All his films are unique. अगर मैं देखूँ तो, जब मैं अंदाज देखती हूँ, it was so ahead of its time. बहुत। मतलब कहाँ उस टाइम में कौन ऐसी फिल्में बनाता था?
And Sagar mein the romance is so beautiful. Some scenes of Kamal Hassan I can't get over. I mean I've cried literally. जब भी वो एक दो scenes आते हैं तो I have cried. Shakti, my God, unbelievable. So I don't know, it's very difficult to choose कि आप कहें कि कौन सी फिल्म. तो मैं I don't know, every film उनकी, एक तो मिस्टर सिप्पी ने कभी अपने आप को रिपीट नहीं किया. सी नॉर्मली डायरेक्टर्स का क्या होता है कि अगर एक हिट हो गई, अगर वो हिस्टोरिकल है तो फिर वो हिस्टोरिकल ही बनाते रह जाते हैं, बिकॉज वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है कि ये वाली मेरी अच्छी चलती है तो चलो मैं यही बनाता हूँ. यू नो, थ्रिलर है तो वो थ्रिलर ही बना. आप अगर रमेश सिप्पी का देखेंगे फिल्म, उनका देखेंगे तो यू विल सी एवरी फिल्म वाज डिफरेंट. सीता और गीता, अलग अलग, शोले, शक्ति, शान, ऑल ऑफ देम आप देखिए. उनकी जो बिग सक्सेसफुल फिल्म्स रही हैं वो आप सारी देखिए. और कपल ऑफ देम वर नॉट सक्सेसफुल आल्सो, व्हिच इज फाइन. कोई भी डायरेक्टर 100% हिट्स नहीं दे सकता है लाइफ में. सो वो होता है कभी कभी, बट मेकिंग में कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं देखेंगे. यू नो, यू विल ऑलवेज फाइंड द इमोशंस आर राइट. और हर अलग फिल्म है लेकिन वहाँ भी इमोशंस राइट होती हैं, जबकि अलग सब्जेक्ट है. इट इज़ चैलेंजिंग. तो मिस्टर सिप्पी चैलेंज ढूंढते हैं. Who are your friends who are comfortable with Ramesh ji and you? मतलब film industry has become your family now. आई एम मोस्ट कंफर्टेबल जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ होती हूँ, फॉर द रीज़न कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे सब टाइप के फ्रेंड्स हैं और सारे इंडस्ट्रीज़ के फ्रेंड्स हैं, और मैं मिलती हूँ सबको. लेकिन इन स्पाइट ऑफ बीइंग सेलिब्रिटीज़, लोग कहें कि ये सेलिब्रिटी है, इनकी तो बड़ी एयर्स होनी चाहिए, ये तो यू नो, ऑनेस्टली आई थिंक वी आर वेरी सिंपल एंड बेसिक विद इन द फिल्म इंडस्ट्री. मुझे ना ज़्यादा फूंफा ये हवा दूसरे इंडस्ट्रीज़ में लगती है, बहुत ही कंटेन्ड. और वो ना उनकी एक इमेज, ये कि इस कॉर्पोरेट में है तो हमारी ये इमेज होनी चाहिए, वो ना अपनी इमेज ही जीते रहते हैं. आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में हम नहीं देखते कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका बैकग्राउंड क्या है, कौन कहाँ से आया है. हम उसके आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं. तो हम जब एक पार्टी में जाते हैं, हमारी फिल्म पार्टी में या क्लोज पार्टीज़ में जहाँ 20-25 लोग होते हैं, आप डाइवर्स लोगों से मिलते हैं. लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, इंटरेस्ट इन क्रिएटिविटी. तो आपके पास बहुत कुछ होता है शेयर करने के लिए. तो जब आप फिल्म लाइन की पार्टी से मैं घर जाती हूँ तो मैं कुछ लेके जाती हूँ अपने साथ. आई हैव लर्नड समथिंग दैट डे. बाकी पार्टीज़ में कई बार, मैं हर पार्टी के बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन बाकी सोशलाइजिंग में मैं बहुत बार देखती हूँ इतनी फ्रिवलिटी होती है, फ्रिवलेस होते हैं लोग कि आप घर कुछ नहीं लेके जाते, आप सिर्फ कपड़े, बैग्स, यू नो, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं. ज्वेलरी, कौन सा डायमंड आपने कब खरीदा, और ऑनेस्टली इट डजंट इंटरेस्ट मी. This Mississippi is not interested in all that. आई एम नॉट. मतलब मेरे हस्बैंड ने एक बार मुझसे पूछा कि ओके इट्स योर एनिवर्सरी, व्हाट वुड यू लाइक टू बाय. मैंने कहा लेट्स गो टू लंदन फॉर अ हॉलीडे. You like traveling together? I love traveling together. I like having good meals. अच्छा खाना हम दोनों का शौक है. हम दोनों अकेले कम से कम हफ्ते में एक बार, मिनिमम कहीं ना कहीं जाएंगे. Just the two of us. We go out for a meal, and I value those. For instance, today I'm going somewhere from here. I will be going somewhere. So we make that time. यार ये इस हफ्ते कहाँ जा रहे हैं, you know, that kind of a thing. And it's special for us. Kiran, last question. What is it that has kept you and Ramesh ji going for so long? Touch wood. Common interest, I think affection and respect for each other. मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते में अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो वो नहीं चल सकता. तो शादी के बाद 34 साल हो गए. Next year you should be celebrating your 35th anniversary. Yeah, we got married in 91. Yeah. So I can't even count. I don't even know कितने साल हो गए. But
Any special celebrations in mind? Haven't planned anything. मैं थोड़ी लेट प्लानर ही हूँ, मतलब वो जब टाइम आएगा हो तो मैं जाएगा कर लूँगी, हो जाएगा कुछ ना कुछ. But in the meantime, congratulations for 50 years of Sholay. Thank you so much. Yeah, and we really looking forward to some great dhamakedar celebrations from you. I'm sure there will be Sholay style. Great. Okay, lovely talking to you. Thank you. Thank you Thank so you. much for inviting me today. Pleasure. देश का नया आइडियाबाज बनने के लिए रजिस्टर करें ideabazdangal.com पर या डाउनलोड करें आइडियाबाज दंगल ऐप, या फिर आप 9167777774 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. अभी रजिस्टर कीजिए.